श्री श्री रविशंकर। How are देख you? आपसे मुझे इतने सवाल करने हैं और ये 40 मिनट जो मुझे मिले हैं आपके साथ, मुझे सबसे पहला सवाल करना था अबाउट द फैक्ट दैट ऐसा क्यों होता है कि हमारे में कुछ लोगों को चुना जाता है, लाइक यू हैव बीन चोजन, आई फील समवेयर इवन आई हैव बीन चोजन टू लीड दीज डिफरेंट लाइव्स, यू नो। हमें कंफर्मिस्ट मतलब कंफर्मिस्ट लाइफ नहीं मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि हम एक उम्र में एक सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ जिए, चीज मेरी लाइफ में, और सक्सेस कभी कभी बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ जल्दी सिखा कर जाती है। Why are we given these kind of lives? You know, these are not like normal lives. I mean, are we here for a purpose? Am I here for a purpose which I'm not even aware of? No, you have already answered your own question. You have been given a role to play. So you play your role, but know that you are much more than the role. That's what probably you are trying to say, that though you have a role to play, but you are not just that, right? उतना ही नहीं है, आप उससे बहुत कुछ और हो, और भी कुछ करने को है। हाँ, वो टाइम पर रिवील होता रहेगा। मुझे मुझे ना 17 साल की उम्र में जब सक्सेस मिली, और उसके बाद आई बिकेम, आई मीन इन 1 ईयर ओनली मेरे को बहुत सारे एनिमीज भी मिल गए, और मुझे लोगों ने बोला यू गॉट टू मच टू सून। इसका मतलब उन्हीं लोगों को समझ में आता है जिनको सक्सेस और फेलियर बहुत जल्दी मिलता है। मतलब इतनी सारी एनिमिटी और नेगेटिविटी मैंने अट्रैक्ट कर ली, इतने सारा गॉसिप अट्रैक्ट कर लिया कि मुझे लोगों से डर लगने लगा। फॉर ऑलमोस्ट 5 to 10 years आई वाज अवे फ्रॉम द, मतलब मैं टीका पहनती थी तो लोग मुझे रिलीजियस बुला लेते लगते थे, विच आई वाज, बिकॉज और आप किस पे डिपेंड करोगे जब आप 17 साल के होंगे। सो ये स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी बहुत यंग शुरू हुई, पहले रिलीजन से फिर स्पिरिचुअलिटी पे एंड अपने बिलीफ्स पे जो आया है, ये ये ह्यूमन लाइफ हमें क्यों मिली? आई मीन क्लियरली देयर इज मोर टू इट देन आई नो, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम really non-specific questions also about the fact that uh, is this the last end of evolution, or is it just the mid path, or what is it? After this, do we evolve into superior beings, or is, I mean, where do we go from here? Okay, Ekta. Now, what do you want to do? What will you do with all the answers you take? Suppose you get answer to all this. क्या करो? फिर क्या है? मैं ये मुझे अगर एक आंसर भी मिल जाए, मुझे ना एक्चुअली क्वेश्चन इतने सारे आते हैं और आंसर्स मिलते नहीं है। No, why should you have answer to all the questions? I Why can't we live with some questions? You know, wonder is a question which you are not seeking for an answer, right? You wonder why this world is like this, you know, why so many people, why people are negative, right? Why there are so many species on this planet? Why human life? You know, these are something to be wondered about. Do you see what I'm saying? A question is like this, when it gets straight, it becomes wonder. So, so certain questions, you know, uh, we live with them, then it becomes wonder. Certain other questions are good to keep because they they are the most motivating factor in our life to move forward. Do you get it? I get it. I think that I don't think I've had a more profound answer than this. You Yeah, know, maybe if I knew the answers, I would not move forward. correct. And then, you know, your head asks different question and your heart asks different questions. If you notice, your head always wants something new, but your heart always longs for something old, right? Oh, sir.
you will hear this dialogue in some serial of mine, and somebody will tell you about it. It is the best line I have heard in a long, long time. It is so true. So, but you are a combination of both head and heart. So you want something new and you value something old also, right? दोनों लेके चलना पड़ेगा. The mind wants excitement, the heart wants stability. Correct. And comfort. Then the hard questions are also very important, and I think it's a very in-depth interview. And I don't know when I will see you again and talk to you again. And I faced a lot of disappointment in life as far as um, love goes. Maybe because of expectation and because of this journey in life, I've had lot of ups and downs because I was told that it's a blessing to be successful, but I feel every blessing is a curse and every curse is a blessing. So because you're successful, you get used and you get abused, and people fake things with you, and the meaning of love for me has become more of give and take. And I felt like I had a purer heart earlier. Now I'm so damaged with the people I've met in my life. And is there a lesson for me here? I don't know about that. No, Ekta, here I want to tell you, your heart can never get damaged. Don't worry about it. It's really, the heart is like diamond. Even if the diamond is put in a muddy water, it doesn't stick to the mud, right? You simply have to relax, and all the tough time has made you somewhere very deep and strong, and that has given you even more skills. So Maybe you're right there. हम दुनिया में किसी को दोष नहीं लेंगे. हर एक आदमी अपना अपना पात्र करता है, तो उस पात्र से हमारे जीवन को ठोक पीट करके सबने चारों ओर से मजबूत बना देते हैं. तो ऐसे ही आप चमकी हो कि कई तरह की लोगों का इसमें योगदान अभी देखने से मुझे किसी ने यही कहा था कि जब तक आपको if you don't have a broken heart, you can't make out. And therefore, I probably learned that from there. But everyone is playing a part. Then where is karma coming into play? So if I'm playing my part and someone else is playing their part, and we both are meant to do this karma, where are we creating that karma? Karma is what is beyond coincidence. It's what we do. So, correct. And I think it's bigger than any gun. सही बात है. इसमें क्या, व्हाट पास्ट का जो भी हुआ ये कर्म हुआ, कर्म से हुआ है. अभी आगे क्या करना है, हमारा मन को जितना हम क्लीन रखते हैं, क्लियर रखते हैं, इस बात को समझ लेते हैं. The moment we understand this is all due to karma, already you are out of it, already you are free. Gurudev, I also believe that we have chosen this life. Is it true that we have chosen this life? Have we chosen our life? Have we got a choice before we come onto this earth? Yeah, definitely. You have come here with a combination of choice and which you have to endure. दोनों. कुछ तो चॉइस भी है और कुछ हमारा प्रारब्ध है, जिसको कहते हैं प्रारब्ध, जिसको हमें भोगना ही पड़ेगा. So आपको मैं बता दूं, I am a single mother. I have had a child on my own, and my son is about 15 months old, and I'm bringing him up with hopefully the art of giving, and that is the art of living, I think. And I'm going to be probably bringing him to the ashram when this lockdown opens up to just see you. Yeah, sure. So I wanted to ask you on this, that I always ask this question from myself, and I don't know if I should ask this publicly, but I ask him that have I stolen from him the chance of having a father, or this is, I mean,
I had a single child because I felt I could give my child both parents' love. Yeah. But I sometimes feel guilty. Is this guilt real or wrong? No. You don't need to. You don't need to. You know, one of the greatest sage, Satyakam, also didn't have a father, didn't know his father. So only his mother, Jabali, was a single mother, single woman brought him up. And he became the greatest. And when he went to his teacher, he asked, who is your father? He said, I don't know my father, but I have my mother, who she is very beautiful, very nice mother. You know, that whole story. So, हमारी परंपरा में है, single mother has brought up children and they have become really great. So you don't need to worry about it. You have just saved me from this very, very intense question that used to come up in my head all the time. My brothers had a single child, and I've had, and someone told us that is our family's, kismat. He was supposed to have a surrogate child, and I'm supposed to have a surrogate child, and we don't know what it is. And I make soaps about married life and joint family, and we live like this, but we have so much love for ourselves and each other, and we've learned compassion through our children. But that is more important. What is important is you fulfill the need of a child, give them full love, full guidance, full compassion. You know, if you are playing both the roles of mother and father, that is it. You know, here in the Puranas there is a saying where Lord Shiva played the role of a mother. There was a saint in there was a saint in Tamil Nadu, for him, Jnana Sambandar, his name was Jnana Sambandar. And Lord Shiva played the role of a mother, both father, that's why he's called Tayu Manavar, means who became a mother also, who played the role of a mother also. So you don't need to get into guilt trip, just give them all attention, make them good citizens, give them good sanskaras. हमारे बच्चों को क्या है, हमें संस्कार देना है, बड़ों को इज्जत करने का, रेस्पेक्ट करने का, और to be kind and compassionate, to be alert, and not to get into drugs and many other habits which would eat their own life. So these are the things that we need to do for them. The most beautiful part of this conversation is that I just saw that video of 10 minutes of yours, and it was so liberating. I want to do more in my life. I feel like I got caught up in creativity. You have, from putting trees to helping the environment to getting countries together to getting mindsets change of terrorists, done so much. I mean, how do I add more value to my life? I mean, is there something I can do? How do I get the power to do more out of this one life I have? I will leave that question with you, because this question is the fuel for you to move in that direction, wanting to do more. Otherwise, you may just sit back. So this question should keep burning inside us. How can I do more? How can I do more? And time and again, you will actually, when we started this daily wage, I stand with humanity, I stand for daily wage workers. You have come out and supported. You said everyone should support. These sort of things we should keep doing. Like we should start a drug-free India campaign. We have already done in the north. In Mumbai we should do. In all these things you could give voice to the youth of the nation. And देश के कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष है जो इतने तंग है. आज क्या हो गया, एक तरह से डिप्रेशन, दूसरी तरह से aggression. Yeah, at the drop of a hat, people getting into aggression, violence. बिल्कुल. और दूसरी तरफ से खुदकुशी, इतने लोग आत्महत्या करने लग गए हैं. इन दोनों से लोगों को बचाना है. इसीलिए अध्यात्म के मार्ग का बहुत बड़ा पात्र है, यहाँ योगदान रहेगा. तो इसमें लोगों को एक तरफ से डिप्रेशन से निकाल देता है, ये दूसरी तरफ से हिंसा और
वायलेंस से भी लोग निकल जाते हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछूंगी अपने बारे में, हाँ बिकॉज हाँ सी मैंने कंट्रोवर्शियल चीजें लाइफ में बहुत की हैं। आई वॉज अ वेरी संस्कारी प्रोड्यूसर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बहुत सारे सोप्स बनाए जिसमें बहुत सारे फैमिली वैल्यूज और सब थे। एंड देन आई डिड ओल्ड बालाजी जिसमें वी शोड सम सेक्सुअल कंटेंट। और मैंने कभी मैंने मैंने एटलीस्ट आई बिलीव दैट in my life I believe that sex is not wrong, because कहीं ना कहीं रिलीजन सेक्स कंसेंट के साथ हो, सेक्स अगर दो लोगों के बीच इंजॉयमेंट के लिए हो, हैप्पीनेस के लिए हो, एज लॉन्ग एज फोर्स अग्रेशन डिप्रेशन के साथ ना हो, तो उसमें कोई गलती नहीं है। मुझे आपका व्यू ऑन समथिंग एज कंट्रोवर्शियल, बिकॉज इस चीज के बारे में कोई गुरु बात नहीं करता। नहीं ये सही सही है। देखो, सेक्स को हिंदुस्तान में हम लोग कभी नहीं गलत कभी नहीं माना। द वे यू हैव सेड इट, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा धर्म के विरोध में ना हो ऐसे काम में ही हूं। धर्म के विरोध ना हो ऐसे परिस्थिति में काम भी मैं हूं, ये भगवान ने कहा है, कृष्ण ने कहा है गीता में। तो हमारे देश में कभी सेक्स को गलत नहीं माना गया। ये हमारा मूल है जिससे हम सब लोग पैदा हुए हैं, बिल्कुल। है ना। कुंडलिनी जो हमारे यहाँ नाभि में मिलती है, वो अपेरेंटली जब वो पूरी तरह सीधी होती है, उसे हम ह्यूमन व्हाट यू कॉल मोमेंट ऑफ एक मोमेंट माना जाता है, जो हाइट। सो कहीं ना कहीं वो हमारे योनि से जुड़ी है। हाउ कैन इट बी बैड? हमारे पूरे भारत का और जो पौरवात्य संस्कृति है ना, इसमें कभी नहीं सोचा ऐसा। दिस इज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जहाँ पर ये आया, ये गलत है। हमारे यहाँ क्या क्या बोले, ये एक शक्ति है, ऊर्जा है तुम्हारे भीतर, वही काम आगे चल के कुंडलिनी रूप में चल के फिर वो प्रेम बन जाता है। मैं यही कहता हूँ, मूलाधार में वो जब फोर्स होता है, वो जड़ता होती है या इंटरेस्ट होता है, फिर वो दूसरे चक्र पर आते आते काम वासना सेक्स के रूप में आती है, फिर उससे ऊपर चढ़ती है, तो वही चेतना प्रेम और खुशी के रूप में प्रकट होने लगती है। एब्सोल्युटली आई तो फुल्ली अग्री विथ यू। जिस मैं दिन यही हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि सेक्स गलत नहीं है, सेक्सुअल क्राइम गलत है, हम अपने देश को बहुत ज्यादा एनलाइटन कर देंगे। हाँ, और ये जो है ना, ये घटित होता है। अभी संन्यास या ब्रह्मचर्य क्या अपने आप घटित होता है, माने जब पूरी एनर्जी हमारी ऐसी ट्रांसफॉर्म हो जाए, प्रेम में बदल जाए, तभी कोई स्वामी बनता है, तभी कोई ब्रह्मचारी बनता है। कि ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये घटित होता है जब कोई नीड नहीं लगती है खुशी को वो आनंद महसूस करने के लिए, तब वो पूर्ण कहते पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, माने अपने मस्त रहते हमेशा, एकदम मस्ती में रहते हैं। तो और सबके काम आ जाते हैं, फिर सबको मदद करते हैं, दुनिया में सबको अपना मानते हैं, ये बात बनती है। और आपको आफ्टर लाइफ और नेक्स्ट लाइफ और इन चीजों में आप बिलीव करते हैं? बिलीव नहीं, मैं जानता हूँ। बिलीव उसी में करना पड़ता है जो हम जानते नहीं। वो है इसीलिए ही। मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि आफ्टर लाइफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम जैसे लोगों को, हम जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हमें कभी ये जवाब नहीं मिलता कि हमारे पूर्वज कहाँ गए, हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद का रास्ता क्या है। ये सवाल आपने खुद कहा था, सवाल खुद हाँ हाँ, जियो। ये बहुत आसान है, ये सब जानना कोई बड़ी बात नहीं। 3 घंटे टाइम लेके आप भी बैठ जाओगे तो आपको भी, आप हम एक प्रोसेस कराते हैं, एटर्निटी प्रोसेस, जब ध्यान का, और ध्यान में गहराई में उतरोगे तो आपको खुद को पता चलेगा पास जन्म कहाँ था अपना, हम क्या कर रहे थे। ये सब जानना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। ये कोविड जो हुआ है और हमें जो अभी हम इतना सफर करें वर्ल्ड वाइड,
इससे कोई लेसन है या कोई, या ये ऐसा एक घटना था, कोइंसिडेंस था, या वाज देयर समथिंग मोर हिडन टू दिस? इसमें ये देख सकते हैं, इसमें एक चीज पॉजिटिव है। एक कोविड की वजह से क्या हुआ, एक सकारात्मक चीज ये बनी है, लोग सब अपने भीतर झांकने लगे, थोड़ा सा जीवन के बारे में सोचने लगे। ये क्या भागा दौड़ी में जो जीवन ऐसे बीत जाता था, जीवन के बारे में कोई परिज्ञान ही नहीं था, होश ही नहीं थी, ऐसे लोगों को अभी लगने लगता है, जरा सोचने को मजबूर कर दिया कि कोविड ने। जब लॉकडाउन के में रहना पड़ता और एक ऐसी कीटाणु से लड़ना पड़ता है जो दिखता भी नहीं है, तो पूरी दुनिया को उसने टप कर दिया। ये तो एक अंतर्मुखी होने के लिए एक मैं कह समझता हूँ एक मौका है लोगों को। मैं आपसे अभी आपको पूछूंगी, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं? मेरे पास कोई सवाल नहीं है और वैसे मैं ला जवाब भी हूँ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। गुरुदेव आप लाजवाब हो। आपके कर्म जो मैंने देखे 10 मिनट में, अगर मैंने अपनी 10 जन्मों में ये किया होता ना, तो मैं अपने आप को बहुत आभारी मानती है। बिकॉज आई हैव नॉट बीन, बच्चों को एडुकेट करना, एवरीथिंग, बिकॉज रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का एक ही काम होता है, कर्म सुधारना। और आई एम सो हैप्पी टू नो दैट आपने इतने सारी चीजें की हैं। I'm just now feeling a little bit less. I mean, एक अचीवर कम फील हो रहा है मुझे थोड़ा सा अंदर से, कि मैंने बहुत कम किया लाइफ में। नहीं, और मुझे एकता, सुनो सुनो, आप शुरू में ही तुमने बताया कि हर एक को एक एक पात्र दी गई है ना? तो डायरेक्टर तो एक है, तो डायरेक्टर पीछे है, पर्दे के पीछे। यहाँ जो भी पार्ट जो भी कर रहे हैं ना, वो सब का कारण कौन है? जो दिखता नहीं वो डायरेक्टर। हाँ, वो डायरेक्टर ने जो जो पार्ट दिया है उसमें ज्यादा कम नहीं होता। होता है क्या? तुमने तो जित सास और बहू में और दामाद और ससुर में कोई आगे, कोई ज्यादा कम कोई हो सकते हैं क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब वो एक। सब हम डिसाइड करते हैं पर्दे के पीछे। हाँ हाँ, ऐसे ही पर्दे के पीछे किसी ने सब डिसाइड किया, बोले गुरुदेव तुम इतना झेलो और एकता तुम ये करो। तो ये गुरुदेव आज सब मुझे पता चल रहा है कि मेरे एक्टर्स क्या फील करते हैं। हाँ? सर आज मुझे पता चला एक्टर्स को क्या लगता है जब मैं उनका स्क्रिप्ट चेंज करती हूँ। हाँ। बट गुरुदेव, अब आपसे इतने दिनों बाद पहली बार बात हो रही है, तो एक और बात मैं पूछूंगी, ये सफरिंग जो हम फेस करते हैं लाइफ में, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली एवरी डे हियरिंग पीपल फेसिंग सफरिंग। लोगों का दो बिलीफ है, एक का बिलीफ है कि हम लोगों की सफरिंग चेंज कर सकते हैं बाय हेल्पिंग देम। एक का बिलीफ है आप किसी का कर्मा कैसे बदल हेल्प कर, आप हेल्प कर सकते हो, जो उनकी लाइफ में होना है वही होगा। आप इसमें से कौन से साइड पे हो? दोनों से थोड़ा थोड़ा ले लिया हूं मैंने। मैं दोनों के साइड पे हूँ, या आई लव इधर यू। से इधर से। इसमें जिसका जो भुगतना है वो भुगतेंगे, मगर हमारा धर्म भी होता है। किसी का कर्म है, उनका कर्म है सफर कर, वो सफरिंग में वो लोग आ गए, और हमारा धर्म है उनका सफरिंग कम करना। बीमार आगे कोई बीमार हो गए, वो बीमार उनके अपने कर्म से हुए, और डॉक्टर का धर्म होता है उनकी बीमारियों को ठीक करना। डॉक्टर बोले कि तुम्हारा कर्म है तुम झेलो, तो मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, तो ये भूल हो जाएगा। डॉक्टर का कर्म है, धर्म है उनकी बीमारी को ठीक करना। इस तरह से जीवन धर्म कर्म का संयोग है। तो आप धर्म भी करो, कर्म में, धर्म में भी रहते हो, कर्म भी करते रहो। Anything you want us to do as creative producers of content? हम इतना content बनाते हैं, ऐसा कौन सा लेसन आप चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स में हमारे लोगों को बताएं?
I want to know this from you as a maker. आज मेरा इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर से बात हो रही है, बुद्ध पूर्णिमा का वक्त चल रहा है, और I want to learn something that I can impart. एकता, अभी ये अमेरिका जैसे देश जो है, भारत के ये जो योग वशिष्ठ है, इसके आधार पर उन्होंने मैट्रिक्स बनाया, इंसेप्शन बनाया, और ये अवतार, ये सब जितने बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज बनी है, वो हमारी जो स्क्रिप्चर के आधार पर बना है। हमारे देश में इसके आधार पर कुछ नहीं बना। अब देखो, वाइब्रेशन के बारे में एक थ्योरी है, वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, ये स्पंद कारिका करके है हमारे यहाँ। तो विदेश में इसके बारे में काफी बनाया, जैसे मैट्रिक्स की बातें कह रहा हूं मैं, वो पूरा योग वशिष्ठ पर आधारित है। तो हमें भारत में भी आप लोग कुछ ऐसा करें, एक इट कैन रियली हिट द वर्ल्ड स्क्रीन। I actually believe that हम लोग मैंने थोड़ा बहुत अपनी माइथोलॉजी में डिप करके नागिन बना दिया, जो आज सुपर हिट हो गया टेलीविजन पे, बट दैट इज बेसिकली साइफाई एंड साइंस। बट जो माइथोलॉजी है, जो हमारी टीचिंग्स है, उस पर अगर हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उसे एंटरटेनिंग तरीके से बताएं, बट यू आर राइट, हम फेल हो गए। हमें अभी करना पड़ेगा ये काम। हाँ, इस दिशा से एक तो मैथोलॉजिकल मूवी लेके आना, वो आज की जो युवा जितने उसको स्वीकार करेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है। और दुनिया भर के लोगों को यदि ये इसको स्वीकार करना हो, तो हमें पुरानी बातों को नए लैंग्वेज में डालनी पड़ेगी। Absolutely, it has to be a universal language जो आज के यूथ एंड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज जो हम कहते हैं, हमारा वर्ल्ड जो है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये जो टीचिंग्स है, बिकॉज जो धर्म और कर्म का सेइंग है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये इतना सिंपल बात है, which is what our scriptures have taught us, and we have not been able to make a movie out of it, you know. करेक्ट, वो करना चाहिए। वो आई थिंक वी कैन डू इट, वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल अबाउट सच थिंग्स। उपनिषद के बारे में भी एक मॉडर्न, उसका एक मॉडर्न टिंच दे करके उपनिषद को हमें लाना पड़ेगा। वो बहुत ही यूजफुल रहेगा, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में उसको No, I actually believe the Upanishads are the core and the root of every being's way of life. So मैं actually आपसे इस पे पूरी तरह agree कर रही हूँ. I feel like creatively maybe this is the next path I should choose, because I feel the Upanishads, मैं खुद भी अभी कुछ दिन है लॉकडाउन के, I'm going to read them all and try to see what can be made in an entertaining today's fashion, because we are all searching answers. मैं आपको आज बैठकर इतनी दिनों बाद एक ही चीज पूछूं, मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब हमारे उपनिषद में है और आप जैसे लोगों के पास है, उनको एंटरटेनिंगली लोगों के पास क्यों ना पहुंचाएं? करेक्ट, करेक्ट, एंटरटेनिंग के थ्रू जाना चाहिए वो, सीरियस नहीं। बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को प्रीच कर रहे हैं। करेक्ट, एजुकेशन हैज टू बी एंटरटेनिंग। करेक्ट। मेरा एक और सवाल है, who do you think is a true leader? One who doesn't ascertain he is a leader, who leads from the back, who wishes everyone move ahead. बहुत सीखा सर। सबसे बड़ी बात है a leader who leads from the back and doesn't ascertain. It takes a lot of grit to do that, and a lot of human strength, commitment and compassion. Like you lead your child from the back, you always are there behind the child and you push your child to move forward, right? ऐसे ही ये माँ हमेशा लीड करते बच्चों को पीछे से। Yeah, you can never lead from the front से आप सिर्फ एग्जाम्पल बन सकते हो, लीड सिर्फ बैक से कर सकते हो, because then the other person sees the road ahead clean. It's a beautiful thought. Thank you sir, and one more, in love
money, fame, success, what should one chase? One should not chase any of them. One should just be who one is, and they will all come to you. बहुत सालों बाद, if I have a chance, I will tell you, if I, after implementing this in my life, if I finally became the leader and the achiever of all these four joys of life. See, your achievement, Ekta, is always smaller than you. Whatever you achieve is a small bit of your skill and your capacity. Don't think it's something big. You are much bigger than all your achievement put together. So I would say whatever we achieve from our talents is a small fraction of what we are. So you're much bigger than your achievement. I don't know what to say to you, Gurudev. I don't know what to say to you. You just make me look inside and make me happy at the same time. Yeah. Thank you, Gurudev. This has been probably the most fun session. And I hope one day I make the matrix in India that you say came from our Upanishads and from our teachings, your teachings. Wonderful. All the best to you. Keep going and doing whatever you are doing. Okay? मैं यही कोशिश करूंगी कि we teach the art of giving and living through our shows. और हम एकता बनाए रखें. Ekta बनाए रखे, right. Thank you, sir.